Actually, Jammu and Kashmir, there are two provinces, Jammu and Kashmir. In Kashmir, you don't feel such like a oozing and all this leaking and all because you have a sloping and all. Here is a big problem because you have slab. Okay, there is whenever there is a high temperature, there is a difference of temperatures, and it creates some problem in roof top. Actually, waterproofing की जो importance होनी चाहिए, that is not there. I personally feel rather than from aesthetics, services are the most essential part of any building, either commercial, residential, or any other. Waterproofing or water leakage is one of the major problem. Awareness is not there. Some companies have promoted कि ये दो प्रोडक्ट है, वही दो प्रोडक्ट आप सीमेंट में मिक्स करके यहाँ पे भी कोट कर दो, वहाँ पे भी कोट कर दो, वहाँ पे भी कोट कर दो और उससे आपका वाटर प्रूफिंग हो जाएगा, विच इज एक्चुअली इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत बार एक यूजर को ऐसा लगता है कि अगर उसने एक वाटर प्रूफिंग केमिकल मिक्स कर दिया सीमेंट में या प्लास्टर में तो उसकी वाटर प्रूफिंग पूरी हो गई. टाइलिंग के थ्रू पानी जाता है, मोस्ट केसेस में टाइलिंग डज नॉट सर्व द पर्पज ऑफ वाटर प्रूफिंग. Water leakage, water dampness, it's a big issue. मुश्किल चैलेंज यही रहा है कि जो एकेडमिक से प्रैक्टिकलिटी में ट्रांजिशन करना, जो हमें थ्योरी में ग्लोरीफाई किया जाता है कि आप सस्टेनेबिलिटी ले आओगे, वो इतनी आसान नहीं है. मनी इज अ वेरी बिग फैक्टर. लोगों की स्पेंडिंग पावर, लोगों की एस्पिरेशन क्या है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन मी बीइंग एन आर्किटेक्ट एंड सेइंग कि भैया मेरा प्रोजेक्ट है, मैं ये बनाऊंगा, मुझे ये चाहिए. लोगों को आइकॉनिक बिल्डिंग चाहिए. ग्रेजुएशन में जो बोलते हैं ना कि आप अपना स्टाइल लेके आओ, तो हम पूरी रात जाके सबमिशनें बनाते हैं और सुबह प्रोफेसर कहते हैं इसमें नया क्या है. बट आई फील जो उसकी सोल है ना बिल्डिंग की, वो सेक्शन में रहती है, उसके अंदर क्या ड्रामा हो रहा है. उसमें मैंने काफ़ी सीखा. वन ऑफ दोस प्रोजेक्ट्स वाज हाउ वी वर बिल्डिंग काइंड ऑफ अ हेरिटेज बिल्डिंग right near a river and a artificial lake kind of. So the best part was obviously making वो heritage structures होते हैं ना, छतरीज and brackets. So उसको कैसे हम quickly modern material, prefab material से हम बनाए, like we made it with concrete. So GRC concrete के हमने छतरीज and panels बनाए थे. So आपको क्या आर्किटेक्चर में वाटर प्रूफिंग एज अ सब्जेक्ट क्या पढ़ाया जाता है? In a very limited way, like it, I would say it's a sub part कि हमें services के अंदर water services पढ़ाते हैं very early stage. Like waterproofing takes a very secondary place in architectural academic courses, which I feel is kind of wrong. क्योंकि in a tropical country such as India, यहाँ पे पानी या तो बचाएगा या बिगाड़ेगा. It lacks हमारे academics. Thank you for watching Imagine Infra podcast. वेलकम टू इमेजिन इंफ्रा पॉडकास्ट. जो ये मेरा पॉडकास्ट बेसिकली दिस इज़ फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री. इसमें जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोफेशनल्स हैं, आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स हैं, सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, दे ऑल आर द व्यूअर्स ऑफ दिस पॉडकास्ट एंड दे वुड बी वेरी हैप्पी टू हैव लिटिल बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम एक्सपीरियंस्ड पीपल लाइक बोथ ऑफ यू. So, ma'am, can you start with introducing yourself? What do you do? I am actually architect Jyoti Rana, serving in the Department of Architecture, a regional architect here in Jammu. So now doing some practice also, but being a government and we just have little time to do everything, but we manage it. जी, जी. This is the point. Got it. So, ma'am, जैसे अगर मैं बात करूँ वाटरप्रूफिंग से रिलेटेड, अगर मैं बात करूं, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है एज एन आर्किटेक्ट? I will tell you one thing. Here is a very big problem. You know, actually, Jammu and Kashmir, there are two provinces, Jammu and Kashmir. In Kashmir, you don't feel such like oozing and all this thing, leaking and all, because you have a sloping and all. Here is a big problem because you have slab. Okay, there is whenever there is a high temperature, there is a difference of temperatures, and it creates some problem in this roof top. And sometimes some places or the colonies are designed like this that you get house to house, side by side, wall to wall. There comes some problems. So problems when you finish, when that is not properly treated here. We face so much problem because whenever you make the house, just yesterday you told people say but करो जल्दी जल्दी तो खत्म करो ना. That's not the point ना. Point is कि that waterproofing जो है that must be finished earlier. That must be done in preliminary functions ना. Because whenever you go inside after 1 year or after 2 years you feel there is a problem. They go to architect, what to do this thing, there is a problem. अरे hairline fracture वो आ रहे हैं, ये वो हो रहा है, ये हो रहा है, exposing हो रही है, यहाँ पे वो हो रहा है. But earlier nobody
takes pains in this. Now, if you take some client that you have to go for the treatment, they feel that we are going to the excess of just finish it. जी, Okay, जी. this should be done first. One must be aware of the thing, not to be for construction finishing. Don't be after that. जी. Go for these things. This is a long pending process नहीं रहता ना. जी. तो ये अर्ली हो जाए तो उससे क्या होता है, आपकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है. You don't face such. You decorate walls, then there is problems. Leaking is there, then it's costs again the same. It should be treated. You must aware the people. First go for this now. Okay, this is very important, especially here, these hot areas में. This is सरिये में अलग टेम्परेचर होता है, कंक्रीट में अलग होता है, सीमेंट में अलग होता है, रेत में अलग. That creates a big gaps and all, na? We face it so many times. Even when you finish the house after 1 or 2 years, na, you just see it was very beautiful. What happened? Here gap, there gap, something like this, na, leaking. This case. जो आपने पूरी मेहनत करी है उसको पूरा बस, डिजाइन बस, कराने में वो पूरी मेहनत वो थोड़ी सी लीकेज से वो खराब हो Because जाती है. clients are also not so much aware of the things. If we don't treat it earlier, we will face very great problem in the long term. Okay, then they have to just करो इसको ऐसे करो, बाद में दोबारा से करो, वॉल को करो, ये कभी पैनलिंग लगा दो, चलो जी उसको छुपा दो. That's not the solution, na? Actually. You should aware the people, because this is most important than to decorate, ornament your house. Isn't it? That's the point. बिल्कुल बिल्कुल नहीं, वेरी वेरी वेल स्पोकन. एंड आई एम श्योर कि इससे लोगों को, व्यूअर्स को भी इम्पोर्टेंस पता चलेगी कि एक छोटी सी वाटर प्रूफिंग की लापरवाही बाद में उस पूरी मेहनत को कैसे खराब कर सकती You है. see, I will tell you one thing. If architect, if you design a house, or you are a client, my client, you tell me design me a house, it's good. If you do yourself, suppose you face so many problems afterwards. By going inside the house, when you reside there, na, you face problem. Same is the point. When you don't do this, na, you face so many problems afterwards. You repent. What is the problem? I have done so much properly. What has happened now? है ना? This should be treated. Enlighten होना चाहिए people, लोगों के minds में ना. They get enlightened. And it is very important. है ना? जी, thank you so much, ma'am. Ma'am, can you please introduce yourself to the audience? What is your background and what do you do? Myself, architect Bhupinderjeet Kaur. I'm teaching as a faculty in Government Polytechnic Jammu. So I'm not in practicing right now. I am as a faculty right now from last 10 years. Okay. So yes, what next? Great. So, ma'am, I'd like to ask you कि since you're in the teaching line, Yeah. waterproofing as a subject अगर मैं बात करूँ तो उसको कितना importance दिया जाता है टीचिंग में अभी in the field of architecture? Actually, waterproofing की जो importance होनी चाहिए, that is not there. I personally feel, rather than from aesthetics, services are the most essential part of any building, either commercial, residential, or any other. Yes, That is what my personal opinion is. got it. And now waterproofing or water leakage is one of the major problem in Jammu, but awareness is not there, and moreover we overlook that thing. जी, We overlook waterproofing, जी, but it is one of the important aspect of building, जी. just like plumbing and sanitary and any other services. Yes. So इसके अंदर अभी अगर जैसे मैं बात करूं तो अभी फिलहाल वाटर प्रूफिंग के अंदर स्टूडेंट्स को कितनी इंफॉर्मेशन दी जाती है, क्या बताया जाता है उनको कि वाटर प्रूफिंग कैसे करते हैं, कुछ उसमें वाटर पार्ट ऑफ द करिकुलम क्या चीज़ें कवर होती हैं उसमें? I don't feel that we give them I just want you people to give us workshop sessions. Yeah. Either it's for people or for students also, either once in a year. Got it. Those who are in construction or those who are practicing, they are having quite good knowledge. But those who are studying or those who are not related to the field, only when they face the problem they come to know about the things. Yeah. That's it. Yeah, lot of times I've seen that
in most of the cases जब प्रॉब्लम आती है then architect is also looking यार solution क्या है, मतलब they don't have ready solutions in hand कि ये प्रॉब्लम है तो ऐसा solution होगा, ये प्रॉब्लम है तो ऐसा solution होगा. उस टाइम पे सब सर्च कर रहे होते हैं कि अब क्या करना चाहिए. Search करते हैं, we go for repairs and we go for amendments and building repairs also, but again with a due period of time the same problem persists. Yes. I hope I will try on your project just like Mac Fault, and I hope it's going to give me a solution. I will give me a good solution, and I will start it from my residence only. Great. I would love to help you. I have, that's what I have, plans I have in my mind. I'm looking forward to it. Great. Might be I will contact you. Great, that will be my pleasure. I would like you to say a brief. Yesterday you have a good presentation, but I would like to give you a brief intro regarding the waterproofing right now for my students also. Yes. Those who are watching me. Okay, great. So I would love to share a little bit of my information. Right from your introduction. Yes. So Okay. I myself am a building protection advisor to more than 100 architects and even 50 plus Government of India enterprises. So I work with a lot of architects, civil engineers. So I've seen ground level से लेके छत तक जब पूरी बिल्डिंग बढ़ती है तो हर एक एरिया में वाटरप्रूफिंग का क्या महत्व है और किस तरीके से वेरी करती है हर जगह पे. So some companies have promoted कि ये 2 प्रोडक्ट हैं, वही 2 प्रोडक्ट आप सीमेंट में मिक्स करके यहाँ पे भी कोट कर दो, वहाँ पे भी कोट कर दो, वहाँ पे भी कोट कर दो और उससे आपका वाटरप्रूफिंग हो जाएगा. विच इज़ एक्चुअली इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत बार एक यूज़र को ऐसा लगता है कि अगर उसने एक वाटरप्रूफिंग केमिकल मिक्स कर दिया सीमेंट में या प्लास्टर में तो उसकी वाटरप्रूफिंग पूरी हो गई, जो कि उसके लिए और डेंजरस होता है क्योंकि वो तो सोचता है कि मैंने वाटरप्रूफिंग भी करवा ली और उसने उसके बाद फिर वो उस पर टाइलिंग भी करवाता है, उसके ऊपर अच्छी महंगी टाइलें भी लगवाते हैं छत के ऊपर एंड उसके अंदर अच्छे बेसमेंट में भी इंटीरियर्स करवाते हैं और उसके दिमाग में है कि मैं तो वाटरप्रूफिंग भी करवाई हुई है. बट एक्चुअली में अगर वो टेक्निकली समझे कि छत की रिक्वायरमेंट क्या है. अब जैसे छत है, छत में थर्मल एक्सपेंशन होता है, गर्मियों में, सर्दियों में, दिन में, रात में भी फर्क हो जाता है, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होता है. तो छत की रिक्वायरमेंट है कि वाटरप्रूफिंग ऐसी होनी चाहिए जो फ्लेक्सिबल हो. कभी भी आप सीमेंट में It should suit every material, no? Yes, every material Yeah. it should suit and उसका इस हिसाब से होना चाहिए कि जितना एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन छत की कंक्रीट में हो रहा है उससे ज़्यादा की प्रॉपर्टीज वाटरप्रूफिंग मटेरियल में होनी चाहिए. अब अगर कोई सीमेंट में कोट करके कोई वाटरप्रूफिंग कर रहा है वो एक रिजिड वाटरप्रूफिंग होती है. वो आप थोड़ी बहुत आप उसको मोड़ोगे तो वो उसकी जब आप लेयर चेक करेंगे, सीमेंट में आपने केमिकल ऐड किया और उसकी थोड़ी बहुत लेयर चेक करी, थोड़ी बहुत मूवमेंट वो सहन कर लेगा. बट अगर आप उसको खींचेंगे तो खींचते ही वो टूट जाएगा. तो छत पे आपको चाहिए ऐसा सिस्टम जो कि एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन झेल ले, अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी हो उसके अंदर, जिससे कि कोई क्रैक है अगर छत में. Whenever you go for the waterproofing on the top, ना छत क्या होता है कि sometimes these masons and all they don't create such a good slope. Yes. That creates a big problem, है ना? Yes. Sometimes there is such a slope कि they just sometimes they do carelessness. Water goes from here, it gets accumulated and seepage is there, na, from the downside. So it should be, while doing waterproofing and all, it should be first checked to have a good slope, na? Yes. So that it can be drained off. Yes. Isn't it? 100%. When it is not there, then nothing will happen. But when it is not drained off, this will create problems, na? 100%. This is very important. 100%. स्लोप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड जब हम स्लोप क्रिएट करते हैं तो एक चीज़ जो बहुत जगह पे मिस आउट हो जाती है वो है स्लोप के अंदर एक्सपेंशन जॉइंट्स प्रोवाइड करना. कि अगर हम स्लोप में ग्रूव कट करके उसमें एक्सपेंशन जॉइंट दे देंगे तो स्लोप अपने आप में भी क्रैक करने के चांसेस उसके कम हो जाएंगे. एक्सपेंशन जॉइंट दे दिया उसमें सीलेंट. May I have a question? यस मैम. Do you have any particular standards for expansion joint as far as the residence is concerned? यस. सो रेजिडेंस What में about the area? सो रेजिडेंस के अंदर एक तो हो गया बिल्डिंग एक्सपेंशन. Yes, I understand that. But I'm asking about small residences. हाँ. Are the expansion joint required there also?
हाँ, सो उसमें जैसे एक्सपेंशन जॉइंट दो टाइप के हो गए, एक बिल्डिंग एक्सपेंशन जॉइंट हो गया और एक एक्सपेंशन जॉइंट हुआ जो हमने कंक्रीट में ग्रूव कटिंग करके प्रोवाइड करे, छोटे छोटे, ओनली 6 mm by 6 mm, 6 mm डेप्थ, 6 mm विड्थ, जो कि हाँ स्लैब डाल दिया, स्लैब पे आपने वाटर प्रूफिंग कर दी, वाटर प्रूफिंग के ऊपर फिर जो आप स्लोपिंग दे रहे हैं, जो आप स्लोप दे रहे हैं उसके अंदर ग्रूव, जो स्लोप आपकी आनी चाहिए मोस्ट केसेस में वो वाटर प्रूफिंग के ऊपर आनी चाहिए। बिफोर यू डू द टाइलिंग, उससे पहले जो आप प्लास्टर करेंगे या आप एक पीसीसी डालेंगे एक 25 mm के आसपास की, उसमें आपको स्लोप देनी है कि एक जगह आपने 25 किया, दूसरी जगह में भी 35 mm या 30 mm पे या 40 mm पे वो खत्म हो रहा है, तो स्लोप ऊपर आएगी और उस स्लोप के अंदर एक्सपेंशन जॉइंट देने हैं, उसके अंदर आपने ग्रूव कटिंग करनी है बेसिकली। ग्रूव कटिंग है, लेकिन व्हाट इज द मिनिमल एरिया फॉर ग्रूव कटिंग? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? I get it. In a residential also, even if it is like a 2500 or 3000 square feet roof, That's it. हाँ, अगर उतनी भी रूफ है तो आपको उसके अंदर रफली Joints है। 1.5 मीटर बाय 1.5 मीटर के ग्रूव्स कट कर दीजिए। 1.5 मीटर बाय 1.5 मीटर के एक तरीके से स्क्वायर पैनल्स क्रिएट हो जाएंगे छत के ऊपर। It's important to हाँ, create it is that very important. joints. It is very important. As far as the waterproofing is concerned. Yes, for the waterproofing, so that PCC does not crack. उसमें कोई क्रैक्स ना जनरेट हो, इसलिए वो ग्रूव कटिंग प्रोवाइड होनी चाहिए और उस ग्रूव में थोड़ा सा सीलेंट फिल कर दे, जिससे कि अगर जो ऊपर आप टाइलिंग करेंगे, फॉर एग्जांपल टाइलिंग के थ्रू पानी जाता है, मोस्ट केसेस में टाइलिंग डज नॉट सर्व द पर्पस ऑफ वाटरप्रूफिंग, उसके थ्रू पानी गया, अब वो पीसीसी के ऊपर आएगा, पीसीसी के ऊपर बैठेगा। अब जब पीसीसी के ऊपर जब वो स्लाइड कर रहा है बिकॉज ऑफ द स्लोप, तो उस टाइम पे अगर कोई क्रैक्स होंगे पीसीसी में तो वो क्रैक्स के थ्रू पेनिट्रेट करेगा और वाटरप्रूफिंग लेयर पे जाके फिर डिपॉजिट होगा, क्योंकि जो वाटरप्रूफिंग लेयर है उसका अपने आप में कोई स्लोप नहीं है, वाटरप्रूफिंग लेयर तो फ्लैट है, तो उसके ऊपर अगर पानी डिपॉजिट होगा लंबे टाइम तक तो चांसेस आर कि वो लीकेज प्रोन ज़्यादा बढ़ जाएगा। पानी अगर उसके ऊपर थोड़ा सा पानी अगर डिपॉजिट होता है, थोड़े दिन के लिए रहता है तो कोई इशू नहीं आता, बट ज़्यादा टाइम के लिए ज़्यादा पानी अगर डिपॉजिट होता है देन दैट क्रिएट्स एन इशू। तो इसलिए वो स्लोप के अंदर ग्रूव कट करके उसकी एक्सपेंशन प्रॉपर्टीज़ को इन्हेंस करना इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड फिर उसके ऊपर से आपने जो टाइलिंग करनी है वो आप कर सकते हैं। सो दिस इज़ द आइडियल सिस्टम जो हम लोग करते हैं। That is good point. To provide an expansion joint in terrace also. यस, I think that is the primary requirement for this waterproofing. हाँ हाँ। अब जैसे बड़ी बिल्डिंग अगर है जिसका मान लीजिए 1500 स्क्वायर मीटर या 2000 स्क्वायर मीटर की एक छत है, जो बड़ी तो छत हो गई, उसमें तो उसमें तो आपको automatically- प्रॉपर ही एक्सपेंशन जॉइंट देना है, वो तो फुल एक्सपेंशन उसमें तो जॉइंट through and through. पूरा Yeah, एक्सपेंशन yeah. जॉइंट आएगा, That's तो वो तो एक अलग हो गया फॉर बिग बिल्डिंग, बट घर टाइप के स्ट्रक्चर में ये छोटे छोटे एक्सपेंशन जॉइंट जस्ट इन द पीसीसी। These are the key points. यस यस। That's it. सो दैट वाज अ वेरी नाइस डिस्कशन। आपके वजह से मेरे को भी कुछ शेयर करने का मौका मिल गया। नॉर्मली मेरे पॉडकास्ट एपिसोड पे एक गेस्ट ही शेयर करता है, आई एम जस्ट द वन आस्किंग क्वेश्चन। पहली बार किसी ने मेरे से क्वेश्चन किया है। I was supposed to. Interaction means both ways. Yes, yes, 100%. One way interaction doesn't mean anything. 100%. It's very big problem. We really have a problem as far as the Jammu is concerned. I don't know because of soil properties or whatsoever it is. There are multiple reasons, but there are. यहाँ का वाटर टेबल हायर है थोड़ा। नहीं, वाटर टेबल का मतलब नहीं, जो क्लाइमेट है ना, दैट्स नॉट क्लाइमेट इज नॉट Climate- दैट गुड ना, Okay. इट क्रिएट्स प्रॉब्लम्स ना, ओके ओके। that's the reason. You have to suffer these things, na? Rain and all, hot and cold. No, मतलब any climate in between. Autumn, summer, winter और ये वो नहीं है। यहाँ से summer से direct winter पे जाता है। अच्छा। ये जो बीच वाला है ना, ये होता ही नहीं है। अच्छा, वो Because in transition नहीं होता। clothing also you have to hot, cold, and in between होता है ना dresses, वो you can't use. This is the reason. That's the same everywhere, ना? हाँ, एक्चुअली देखा जाए तो सिर्फ जम्मू की प्रॉब्लम नहीं है, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इंडिया इज फेसिंग But वाटरप्रूफिंग we इशू। don't have proper people here that one person is here in our exhibition, Sharma, KK Sharma. He is a person, you go there,
he has his own limits and whatever he has the things he tells. Otherwise, what is advanced, that's not so proper. Yeah. Guidance. That's, you are coming and you must have here also interaction in the Jammu region, no? So that people can be get rid of this. No? Yes. Because house बनाना is not a big cat area. फिर ये चीज़ें बीच में implement करनी, that's very big, है ना? लॉन्ग टर्म नॉन एसेट बन जाता है ये, नहीं तो बना दूँ आफ्टर 3 years खत्म, शक्ल ही बिगड़ गई होती है. Because of dampness. Yeah, of course. चलो, thank you so much, ma'am. Do you want to talk about anything else? Even it is a big issue as far as the government buildings are concerned. Government buildings. Yeah. Water leakage, water dampness, it's a big issue. Have you ever like spoken to people in the government, like why do they think कि उनके I mean, building में I'm not क्यों हो into रहा है? practicing. Because you have, it is, we have our office has been made recently, after 10 years, I think, 15 years. But when it was made, it was so beautiful looking and all that. But now today you go and see, it's the same as the primitive age का है. Means उधर से भी कलाड़ी उतरी है, इधर से भी वो है, इधर से भी. Means कि you people have to go in the government institutions, मीन्स जो कनेक्शन हाउसिंग में या जो भी है इसके कंसर्न है म्यूनसिपलिटी में, वहाँ उनसे कंटेक्ट करना भाई, यू आर मेकिंग द बिल्डिंग्स, वी विल गो फॉर इम्प्लीमेंटेशन, यू जस्ट चूज अस. That will solve the problem, isn't it? That solves the problem. So government building will, in government buildings you will get implementation like this only, na? Because no officer can, there is a some point of funds and there is one everything, isn't it? So you have to go the authorities, housing means our commissioner, housing and urban development commissioner, you go tell them all the offices we want, when you are making it, we want to go for the water, our this latest waterproofing technology, that's really good. You can go, here's a madam, you can go to her. Matlab, that's a good thing, I think. No? Got it. नहीं बिल्कुल. Do you want to? Many thanks to you. It was nice to interact with you. Thank you. It was my pleasure. Many thanks. Thank you so much for everything you did there. Only you gave this technical session and all. It was very nice, huh? Very interesting it was. Thank you so much. Thank you so much. Hi Rajveer bhai. Hello sir, how are you? Hi Sarthak. Hello. I'm good. So welcome to the Imagine Infra podcast. So this is I think my first podcast जो मैंने एकदम youngsters के साथ में कर रहा हूँ. And normally I host podcast with one person only. So this is also one of my first. जिसमें I'm hosting it with 2 people and the youngest people till now. So Rajveer, would you like to introduce yourself first, audience के लिए? Yeah, so I'm Rajveer and I've recently graduated. I've done my BR from Guru Nanak Dev University, Amritsar, and I'm now practicing in Jammu as an architect. Hello all. Yes. I am Sarthak Pathania. I'm still a student pursuing my bachelor's from GCAT Sonipat. So I'm a 4th year student studying architecture. Great. So Rajveer, आपसे मैं start करता हूँ discussion. So what is आपने architecture field किस लिए चुना? मतलब how did you come into architecture? Why did you do architecture? Actually my father is also an architect. तो घर में शुरू से ही ये बातें थी आर्किटेक्चर की कि मतलब प्रोजेक्ट चल रहे हैं घरों के. जम्मू एक छोटा शहर है कंपैरेटिवली, तो मोस्टली रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स यहाँ पे चलते हैं या फिर गवर्नमेंट सेक्टर्स में इंस्टीट्यूट्स या हॉस्पिटल्स वगैरह. तो घर पे एक ऑरा तो था, बट ऑनेस्टली मेरे को लगता था कि आर्किटेक्ट सिर्फ घर बनाते हैं, क्योंकि माई फादर वॉज मोस्टली इनटू रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स. तो मेरा विजन इतना ही था, और ना मेरे को लगता फादर ने कभी पुश नहीं किया कि तू यही कर, कि तेरा बिजनेस है तो इसमें बैठ. उन्होंने न्यूट्रल रखा कि ज़्यादा भी ना ये सोचे कि एक इस्टेब्लिश्ड बिजनेस है तो तू मतलब मेरे को आराम हो जाएगा, आसान हो जाएगा. इट वॉज न्यूट्रल. येट आई हैड नॉलेज कि डिज़ाइन करना, बिल्ड करना, या ओकेजनली पापा के साथ साइट विजिट्स पे जाना आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट्स की. बट मतलब क्वाइट फ्रैंकली इतना ही पता था कि आर्किटेक्ट घर बनाते हैं, और ये जो बड़ी बिल्डिंग है इनके पक्का इंजीनियर्स होते होंगे, सिविल इंजीनियर्स. एंड इवन अगर आप जाने, आर्किटेक्चर एजुकेशन इज़ वेरी रिगरस.
5 साल का कोर्स है और सोने को नहीं मिलता उसमें। इन शॉर्ट अगर मैं समराइज करूँगा इन अ सिंगल लाइन, इट इज़ अ रिगोरस कोर्स, क्योंकि आप ऑब्वियसली आप मैं ऑनलाइन भी रीड कर रहा था कि जो डॉक्टर्स हैं वो अपनी गलतियां भरी करते हैं, हाँ और आर्किटेक्ट्स जो हैं वो फ्रेम करके दिखाते हैं दुनिया को कि ये हमने बनाया। अगर उसने कुछ गलत कर दिया ना, पूरी दुनिया आके देखेगी और उसको फिर गाली निकालेगी। तो द कोर्स इज वेरी रिगरस कि आपको छोटी छोटी चीज़ों पे वो बताते हैं कि ये ऐसे नहीं है, ऐसे। तो मेन मोटिवेशन या एक मेन इंस्पिरेशन मान लो तो यही थे कि फादर आर्किटेक्ट हैं, तो एक थोड़ा सा आइडिया था, बट मेन मैंने वहाँ जाके सीखा डिग्री के बीच में कि क्या है ट्रू सेंस में। गॉट इट। सो आपको कितना 6-8 महीने हुए हैं अभी प्रोफेशनली इसमें आए हुए? ग्रेट। तो अभी तक का आपका सबसे चैलेंजिंग एक्सपीरियंस क्या रहा है? चैलेंजिंग एक्सपीरियंस रहा है क्लाइंट्स को कन्विंस करना कुछ रिस्की या कुछ विजनरी अटेम्प्ट के लिए, मतलब मानने के लिए, क्योंकि समथिंग न्यू यस, इनोवेशन के लिए। क्योंकि कई बार जो क्लाइंट्स है ना वो डर जाते हैं कि नहीं अच्छा ये डबल हाइट एरिया ये कैसे दिखेगा, इररिस्पेक्टिव इवन इफ यू प्रोवाइड द 3Ds एंड वॉक थ्रूज, उनको लगता है नहीं जो चल रहा है ना वो सही है, या फिर जल्दी जल्दी काम खत्म करो। दे वांट लो मेंटेनेंस, दे वांट लो, मतलब इकोनॉमिक्स ज़्यादा ना हो जाए, खर्चा ज़्यादा ना हो, पर मेन मेंटेनेंस का है। अ क्लाइंट इज वरीड अबाउट द मेंटेनेंस इन ऑल एस्पेक्ट। वो नहीं है अगर आप उसको जाके सस्टेनेबिलिटी के पार्ट पढ़ाएंगे ना कि मिट्टी के लेप लगाओ, या वो नहीं मानेगा, क्योंकि वो नहीं हर साल कर सकता। तो मेरे लिए जो एक मुश्किल चैलेंज यही रहा है कि जो एकेडमिक्स से प्रैक्टिकलिटी में ट्रांजिशन करना, जो हमें थ्योरी में ग्लोरीफाई किया जाता है कि आप सस्टेनेबिलिटी ले आओगे, वो इतनी आसान नहीं है। मतलब मनी इज़ अ वेरी बिग फैक्टर इन दिस। लोगों की स्पेंडिंग पावर, लोगों की एस्पिरेशन क्या है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन मी बीइंग एन आर्किटेक्ट एंड सेइंग कि भैया मेरा प्रोजेक्ट है, मैं ये बनाऊंगा, मुझे ये चाहिए। तो ये मुझे से ज़्यादा लोगों पे ज़्यादा है कि क्लाइंट को क्या चाहिए, क्लाइंट की क्या एस्पिरेशन है। तो चैलेंज यही है कि उनकी एस्पिरेशंस और अपनी एस्पिरेशंस को बैलेंस करना, क्या सही है और क्या क्लाइंट को चाहिए, उनका एक बैलेंस। गॉट इट। इंटरेस्टिंग। सो आपके हिसाब से ऐसी कोई चीज़ जो आपको लगता है कि मैं यार इस चीज़ के लिए इक्विप्ड नहीं हूँ जब मैं आया इस बिजनेस के अंदर, मे बी समथिंग दैट वाज लेफ्ट आउट इन माय एजुकेशन व्हिच शुड हैव बीन कवर्ड, ऐसा कुछ आपको लगता है कि एजुकेशन में किसी चीज़ पे और ध्यान देना चाहिए था? है, बिल्कुल है। जैसे कि कॉस्ट इफेक्टिव डिज़ाइन। ओके। कि हमें जो प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं ना 5 साल, उसमें पैसों की बातें नहीं होती कुछ। हम एक यूटोपिया बताया जाता है कि एक साइट है इतने एकड़ की, कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है बजट की, आपने जो बनाना बनाओ। अच्छा। बस प्रैक्टिकल सस्टेनेबल वो जो कुछ होते हैं गाइडलाइंस वो तो है ही, बट आई गेस पैसों का कभी सार्थक कभी आपको मतलब बजट वगैरह नहीं पता चला? नहीं कोई बताते हैं, और ना वो बोलते हैं कि आपने लिमिट नहीं होना, जबकि एक कंस्ट्रेंट मेरे को लगता है लिमिटिंग नहीं, गाइडिंग फोर्स है कि बजट है उस हिसाब से मैं देखूं क्या कर सकता हूँ, मेरे को सस्टेनेबल वाले मेजर्स में जाना है या मेरे को कॉस्ट अफोर्डेबिलिटी की तरफ जाना है। तो एक ये फैक्टर मेरे को लगता है कि जो एक बड़ा एक मतलब दूर है एकेडमिक्स और रियलिटी ना, और धीरे धीरे और दूर हो रही है कि लोगों को आइकॉनिक बिल्डिंग चाहिए। ग्रेजुएशन में जो बोलते हैं ना कि आप अपना स्टाइल लेके आओ, कुछ नया लेके आओ, मतलब हम पूरी रात जाग के सबमिशनें बनाते हैं और सुबह प्रोफेसर कहते हैं इसमें नया क्या है। वो चलो वो भी एक अच्छी चीज़ है, आइडेंटिटी होनी चाहिए, बट आई फील कि मतलब मैनेजमेंट ऑफ फंड्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गॉट इट। इंटरेस्टिंग। तो मैंने एक बुक भी लिखी है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, जो आपको कल आप जीते भी हो सो आई एम श्योर आप वो पढ़ोगे, आपको कुछ चीज़ें आपको ज़रूर मिलेंगी, लाइक रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, हाउ टू फास्ट ट्रैक देम एंड हाउ टू चूज द राइट वेंडर्स, वो सब मैंने उसमें कवर किया है। बिल्कुल। सो एंड हैव यू हैड एनी एक्सपीरियंसेस रिलेटेड टू वाटर प्रूफिंग और समथिंग लाइक दैट बिफोर? वाटर प्रूफिंग नॉट रियली, अभी तक कोई ऐसा कोई वो नहीं आया आपको? पर इश्यूज आते हैं मतलब एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स में कि क्लाइंट ने बोला हो कि मतलब सीपेज आ रही है, जो स्पेशली जो वॉशरूम के साथ वाली जो दीवार होती है, यानी कि बेडरूम के साथ जो अटैच टॉयलेट है, तो वो वाली जो कॉमन वॉल है वहाँ पे सीपेज दिखनी शुरू हो जाती है। साल 2 साल में आप
पता नहीं जो वेंडर्स हैं वो लोकल वेंडर्स तो क्लेम करते हैं कि नहीं आएगी, बट साल 2 साल बाद वो दिख जाती है और फिर इवेंचुअली वो क्या करते हैं, उसमें पैनलिंग लगा देते हैं, उसको छुपा देते हैं। उस पर जो वॉलपेपर या पेंट लगा है वो खराब हो जाता है, तो अगेन मेंटेनेंस की बात है ना, वो बार बार पेंट नहीं कराना चाहते, तो वो कहते हैं हम पैनलिंग करके उसको छुपा देंगे, जो कि एक सोल्यूशन नहीं है, एक मतलब एक चिपका रहे हो आप उसके ऊपर, मतलब छुपाना वाला चीज है। तो ये इशू आता है। कोई ऐसी इनोवेटिव चीज जो आप उस आर्किटेक्चर के फील्ड में करना चाहते हो इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स, कुछ ऐसा है आपके दिमाग में कि यार ये कुछ हटके करना चाहता हूँ, ऐसा कुछ सोचा है आपने? मैं स्पेशली ना बिल्डिंग्स की सेक्शंस में बड़ा इंटरेस्ट रखता हूँ। अगर आप बिल्डिंग सेक्शन हो गया कि जो उसकी हाइट्स है अंदर से, जैसे आप ये जो एक स्पेस है ग्राउंड फ्लोर, ये सिंगल हाइट है, आप होटल की लॉबी एंटर करते हो वो डबल हाइट होती है, तो एक थोड़ा इम्पैक्ट आप में आता है ना कि मैं कहीं आया हूँ, एक लग्जरी फीलिंग। या कुछ स्पेसेस होती है वो थोड़ी मतलब छोटी होती है, टाइट होती है। एक हॉलोकॉस्ट म्यूजियम है यूरोप में, तो वो ज्यूज के अगेंस्ट तो क्राइम हुए थे ना, उसको उसकी याद में, तो उन्होंने मतलब उसी चीज़ को लेके उन्होंने ना जानबूझ के वो काफ़ी नैरो किया हुआ है म्यूजियम, ताकि यू गो थ्रू दैट पेन। मेटाफर है बट एक विजन है, तो मैं आई फील वेरी कनेक्टेड विद सेक्शंस, और जो ये अंदर से स्पेस है अंदर से, रादर देन कि आउटसाइड मटेरियल चिपकाने के बजाय कि ये मार्बल चिपका दिया, ये जो काफ़ी लोग करते हैं, और सरवाइव करने के लिए करना भी पड़ता है क्योंकि क्लाइंट को चाहिए। क्लाइंट अगर पैसे खर्च कर रहा है उसको एक अच्छा फसाड चाहिए बिल्डिंग का, बट आई फील जो उसकी सोल है ना बिल्डिंग की, वो सेक्शन में रहती है। उसके अंदर क्या ड्रामा हो रहा है, उसके अंदर क्या फीलिंग है। आप पहले एंटर कर रहे हो, सिंगल हाइट वाली स्पेस है, तो सीलिंग ऊपर दिख रही, थोड़ी देर बाद वो ऊपर शिफ्ट हो जाती है, फिर आप नैरो स्पेस में एंटर करते हो। तो जो ये वेरिएशंस है ना, ये थोड़ा इंस्पायर करता है। इंटरेस्टिंग। दैट फर्स्ट टाइम मैंने सुना कि इस तरीके का भी कॉन्सेप्ट होता है, मैंने इमेजिन नहीं किया था। मतलब दिस इज समथिंग वेरी नाइस एंड यू कैन प्ले अराउंड विद इट, कि आपका इंटरेस्ट है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सार्थक, आपसे, आप बहुत देर से चुप बैठे हो तो आपसे कुछ पूछते हैं। सो आप क्यों आए आर्किटेक्चर फील्ड में, आपने क्यों चुना ये फील्ड? सो ऑब्वियसली आई वॉज वन ऑफ दोज जो पैंडेमिक में मेरी 12th चल रही थी, सो आई वॉज काइंड ऑफ लाइक एमलेस हो गया था मैं बोथ बाय द एंड ऑफ इट कि व्हाट शुड आई डू। सो आई वॉज ऑल्सो हेसिटेंट कि मेरे को शुरू से इंटरेस्ट था थ्रू आर्ट एंड कंजर्वेशन एंड हिस्ट्री में, तो आई थॉट कि या आर्किटेक्चर वुड प्रोबेबली द बेस्ट अमेलगमेशन ऑफ ऑल ऑफ माई इंटरेस्ट। तो आई डिड गो एंड गेट इनटू इट कि हाँ चलो ठीक है, मेरे को इंटरेस्ट है इन सब फील्ड्स में, आर्किटेक्चर इज समथिंग दैट आई कैन मेक आउट ऑफ, अपना करियर एक बन जाएगा। फिर व्हेन आई गॉट इनटू इट, ऑब्वियसली इट वाज वेरी ऐसे डॉन्टिंग कि अरे ये सब क्या, बिकॉज वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट बिल्कुल भी। आर्किटेक्चर इज वन ऑफ दोज फील्ड्स जिसमें यू जस्ट गेट इनटू एंड देन आप खुद अपने बलबूते पे आप गेन करते हो नॉलेज अलॉन्ग दी वे। So that is probably the best part of architecture ki, and now I'm very passionate about it. अच्छा, very nice, very nice. Have you worked on any innovative project recently that you've studied about or you worked on? So I just recently finished my internship in Jaipur, my architectural internship. I was there for 6 months. So I was in a very wonderful firm. So उधर they had quite some new projects and different projects. So उसमें मैंने काफ़ी सीखा. One of those projects was how we were building a kind of a heritage building right near a river and a artificial lake kind of. So उसमें I never thought about integrating services and keeping water out and everything. So that was a very interesting project. So उसमें हमने काफ़ी innovative ideas use किए, and the best part was obviously making वो heritage structures होते हैं ना, छतरीज and brackets. So उसको कैसे हम क्विकली मॉडर्न मटेरियल, प्री फैब मटेरियल से हम बनाए, लाइक वी मेड इट विद कंक्रीट. सो GRC कंक्रीट के हमने छतरीज एंड पैनल्स बनाए थे. सो दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस विद इट, एंड आई एम डेफिनेटली गोइंग टू यूज इट एंड एडवाइज अदर्स इन द नियर फ्यूचर. वेरी नाइस, वेरी नाइस. सो आपको क्या आर्किटेक्चर में वाटर प्रूफिंग एज अ सब्जेक्ट क्या पढ़ाया जाता है और उसको कवर किया जाता है? येस, बट in a very limited way. Like I would say it's a sub part कि हमें सर्विसेज के अंदर वाटर सर्विसेज पढ़ाते हैं वेरी अर्ली स्टेज, लाइक 3rd सेमेस्टर में, जब बच्चों को सर्विसेज में कुछ इंटरेस्ट नहीं होता. ऑल दे वांट टू डू इज डिज़ाइन एंड प्रोबेबली बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन. तो
waterproofing takes a very secondary place in architectural academic courses, which I feel is kind of wrong. क्योंकि in a tropical country such as India, यहाँ पे पानी या तो बचाएगा या बिगाड़ेगा. So that I feel is it lacks हमारे academics में. So yeah. Got it. So what do you think like students should do, because waterproofing की क्या importance समझते हैं students when they are during like ये I think you can also answer कि during the स्टडी फेज क्या वाटरप्रूफिंग की इंपॉर्टेंस समझ आती है कि यार ये इतना बड़ा इशू हो सकता है, जो कि एक्चुअल में जब हम ऑन ग्राउंड देखते हैं तो क्या ऐसा लगता है आपको? बच्चों को ऐसा नहीं लगता, बिकॉज वही है ना, सर्विसेज तो मेन सब्जेक्ट इज डिजाइन. बच्चों academics, I'm purely speaking from an academic point of view. So students are more inclined towards design. Services is like कि ठीक है एंड में कर लेंगे एक दिन पहले कुछ ना कुछ. तो waterproofing is not at all which they keep in mind. But I feel कि उसको रखना चाहिए, क्योंकि वही जैसे राजवीर भैया ने अभी बोला about long maintenance and everything. तो long term planning में, long term maintenance में waterproofing takes a very major role, क्योंकि बिना उसके आप नहीं अपना घर प्रोटेक्ट कर सकते हो. सो आई फील दैट देयर शुड बी मोर इंफॉर्मेशन अबाउट इट एंड पीपल शुड टेक अ मोर एक्टिव रोल इन learning and integrating waterproofing systems in their designs and anything. That is a thing, definitely. And what is your view about it, Rajveer? मैंने भी अपनी इंटर्नशिप बॉम्बे में की थी, मुंबई में. तो they were doing this one project where they had made the entire building in stone. Okay. तो काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट था, और डिज़ाइन वगैरह अगेन सेक्शन की मैंने बात की वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थे. बट जब मैं गया था वो प्रोजेक्ट को आई गेस 1-1.5 साल हो गया था, और पहली बार से थी, दूसरी बार से थी शायद बॉम्बे की. वो तो वैसे ही बड़ी रिगरेस है मुंबई में जो होती है. तो एक दिन ऑफिस में आर्किटेक्ट को क्लाइंट का फ़ोन आया कि सर पानी मुझे टपक रहा है. अब इनोवेशन तो उन्होंने की कि स्टोन में बनाया, बट वो था क्या, वो स्टोन के ना स्लैब्स से पतले पतले काट के, जैसे प्लैंक होते हैं ना, वो इंटरलॉक किए थे उन्होंने स्लैब के. तो कहीं से कुछ उसमें जॉइंट रह गया तो वो पानी अंदर आने लग गया. तो मतलब मेरे को उस टाइम लगा कि ये इशू लोकलाइज्ड नहीं है, कि मैं बोलूँ कि जम्मू छोटा शहर है तो वहीं पे ही है. ये बॉम्बे में भी है, जो मतलब इंडिया का फोर फ्रंट जहाँ आर्किटेक्ट शहर है वहाँ पे भी है, और जो मेरा शहर है जम्मू वहाँ पे भी है जहाँ हमारे प्रोजेक्ट्स है. और यहाँ पे भी अगर क्लाइंट कभी बोले सर हम तो फंस गए यहाँ, तो पानी आ रहा है अंदर सारा. तो मतलब आप जब उतरते हो इंडस्ट्री में, जब आप प्रैक्टिकलिटी से जुड़ते हो, तब आपको पता लगता है कि स्टेक्स बहुत हाई हैं. जैसे आपके लेक्चर में कल बताया था कि अमाउंट इनिशियली छोटा है, बट बाद में जो नुकसान करेगा वो करोड़ों में हो सकता है. इनिशियल अमाउंट बड़ा थोड़ा सा है, आप अगर समय रहते लगा लो, एक अच्छा प्रोडक्ट लगा ले, एक कंसल्टेंट हायर कर लो, तो बेटर रहेगा कि आपका एक लॉन्ग टर्म नुकसान नहीं होगा उस टाइम. लेकिन क्लाइंट्स कभी कभी सोचते हैं कि शायद आर्किटेक्ट के अपने टाइप्स हैं, इनके साथ इसकी कमीशन होएगी, ये तभी बोल रहा है कि ये वाली कंपनी लो. बट आई गेस क्लाइंट्स को थोड़ा सा ट्रस्ट करके सुन लेना चाहिए. यस, दैट इज ट्रू. तो आप सार्थक को कोई एडवाइस देना चाहोगे कि अपने बचे हुए एजुकेशन के सालों में उसको क्या चीज़ करनी चाहिए, फोकस, जो कि अगर वो नहीं करेगा तो मिस आउट कर जाएगा? एनी एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव टू हिम? आई गेस एंजॉय करना चाहिए क्योंकि मैं बहुत मिस कर रहा हूँ अब कॉलेज को, क्योंकि पढ़ाई तो होती रहेगी और ये कर भी लेगा सार्थक को मैं जानता हूँ. और मतलब मैंने भी किया अपने टाइम में, बट वो एक जो जितना एंजॉय मैंने फाइनल ईयर में किया ना, क्योंकि तब एक पुश था, सारे बोल रहे थे अब आखिरी साल है यार, 1 साल रह गया. तो हमने काम भी किया, एकेडमिक्स भी किए, हमने अपना फ्रीलांस काम भी किया वहाँ पे अमृतसर में ही. 2-3 लोगों ने मिलके एक प्रोजेक्ट पूरा करवाया कंप्लीट, वो भी किया हमने. कंसल्टेंसी के साथ भी काम किया. हमने हर जगह पैर फंसाए कि ये लास्ट ईयर है, कुछ करके फोड़ के जाना है इस बार. और वो मेमोरीज इतनी अच्छी थी कि हम लास्ट दिन रो रहे थे हॉस्टल में कि यार अब खत्म हो गया ये. और मेरे को पर्सनली अभी तक 5 साल में से सिर्फ फर्स्ट ईयर याद है और 5th ईयर याद है, बाकी सारा काम करते निकल गया, रातें जाग के निकल गया. तो मतलब मैं यही बोलूँगा कि अब 1.5 ईयर है, तो उसमें हर चीज़ में हाथ पैर डालना है, इंजॉय भी करना है, काम तो करना ही है ताकि 5 की डिग्री 6 की ना हो जाए. बट इंजॉय करना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. very nice interacting with both of you, and I'm sure it will be a very fun episode. जो भी स्टूडेंट्स हैं, अपने स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए काफ़ी यूजफुल होगा ये सेशन. So good to have you both here. Thank you so much, Sarthak. Thank you so much, Rajveer. Thank you so much.
you